Welcome. Welcome to the series of lectures Physics. We are studying the chapter Circular Motion, learning the concept based on it, and all these videos have been uploaded to my YouTube channel Grand Physics. So you can go to YouTube, search Grand Physics and see the lectures uploaded for the topic circular motion. In the last class, we discussed about the case when the particle was not able to complete the circle. So what minimum velocity was required for a particle at the bottommost point so that it can complete the circular path? We discussed in the last class. We derived the equation. We got the values for velocity when velocity is 0, when tension is 0, either tension is 0 or velocity is 0. So we discussed. You can go and see the last lectures uploaded on the YouTube channel Grand Physics. In today's class, we shall see another case. There could be a case when a particle is placed at the top of a solid sphere. So let's consider what actually we want to discuss here. Let's suppose this is a solid sphere of radius r and a small mass is placed on the top of it. So actually, when we gently or very gently just push this mass, this will travel on the surface of the solid sphere up to some distance, and after that it will free fall. That will happen. But if we give the velocity, just consider if we give the velocity v to this ball in with greater value, it may just at this point leave this surface. If we give larger value of velocity to this ball, it may leave. So we need to decide what minimum velocity should be given to this particle at the topmost point so that it can travel to some distance and after that it will leave the surface of the solid sphere. Correct? So just see, if you write the equation, leaving the surface of solid sphere means what? If as far as this small block is in contact with the surface of this solid sphere, there is the value of normal reaction. But when it is about to leave the surface of the solid sphere, it means the value of normal reaction is becoming 0. So when normal reaction value is 0, we can say that there is no contact or contact is lost already. अगर यह पार्टिकल इस सॉलिड स्फीयर के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा. तो इसके कांटेक्ट से हटने का मतलब क्या, कि कांटेक्ट से हटने का मतलब ये हुआ कि यह पार्टिकल का नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. तो अगर इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे आप देखेंगे यहां पे, तो ये आपको दिया हुआ है कि ये आर है, ये आर है टोटल. तो अगर इस पार्टिकल का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव mg and in upward direction we have normal. And now suppose this particle is given a velocity of v. So
since it is in circular motion, so the resultant of mg and n will provide the centripetal acceleration so that the particle to remain in circular path. इस पार्टिकल को चूंकि यह सर्कल में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की जरूरत होगी। सेंट्रीपेटल फोर्स किधर लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। तो अगर सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स को हम कंसीडर करेंगे तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा हम लोगों का कि mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। r इज द रेडियस एंड v इज द वेलोसिटी। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा? mg माइनस n। तो mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। तो अब यदि यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा कि नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब इस इक्वेशन को देखिए कि जैसे जैसे यह v का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इस v का वैल्यू जैसे हम जीरो से बढ़ाते जाएंगे, जेंटल पुश का मतलब जीरो, और उससे ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो कितना मैक्सिमम वैल्यू तक यह इस सरफेस पे रहेगा, और उस वैल्यू के बाद उस वैल्यू से इंक्रीज यदि हम वेलोसिटी को करेंगे जस्ट इसी पॉइंट पे यह लूज कर देगा। अगर इस तरीके से रखा हुआ है और यहां से हमने कुछ वेलोसिटी दिया तो यहीं से सरफेस को लूज कर देगा और एक्चुअली क्या है यहां से एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, यह पैराबोलिक पाथ पे आएगा। यहां से इस तरीके से होते होते, अगर इस तरीके की बात कर रहा हूं, अगर वेलोसिटी हमने ज्यादा दे दिया तो यह कुछ इस तरीके से आ जाएगा ग्राउंड पे, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन यदि उससे कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा कि यह पार्टिकल कुछ दूर तक इस सरफेस पे करेगा मोशन, उसके बाद यह फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे आ जाएगा। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v का मैक्सिमम वैल्यू जब होगा, v अगर वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं जब यह कांटेक्ट लूज कर दे, तो फॉर लूजिंग कांटेक्ट n इक्वल्स टू जीरो। तो अगर n का वैल्यू आप जीरो रख देंगे इसमें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से mm कैंसिल हो जाएगा और ये v जो है वो v मैक्स कहलाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा वेलोसिटी आप नहीं देख सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा? rg। तो यहां से अगर आप v मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, v मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट rg। मतलब क्या है? यह इक्वेशन क्या बताता है? v मैक्स का वैल्यू जो हम लोग निकाले अंडर रूट rg, यह क्या बताता है? यह इस बात को बताता है कि यदि अंडर रूट rg, r यदि रेडियस है सॉलिड स्फीयर का, अंडर रूट rg से ज्यादा वैल्यू उस वेलोसिटी को मिल गया, उस पार्टिकल को मिल गया वेलोसिटी, तो यह पार्टिकल यहीं से लूज कर जाएगा और ये इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। करेक्ट? सो इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, if v greater than under root rg, particle will lose contact at topmost point। इसी पॉइंट पे यह कांटेक्ट को लूज कर देगा और क्या करेगा? यह फ्री फॉलिंग बॉडी होगा। इसके बाद तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोजेक्टाइल मोशन में या प्रोजेक्टाइल की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से। यदि यहां से इसको हम थ्रो कर दे तो क्या होगा? एक पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो ये सही है। और यहां से आरजी का वैल्यू हो गया, अगर आरजी से ज्यादा का वैल्यू है तो ये कॉन्टैक्ट को क्या करेगा? लूज करेगा। बट यदि इसका वैल्यू अंडर रूट आरजी से कम है तो क्या होगा? अगर अंडर रूट आरजी से कम है तो ये इस पाथ को तो फॉलो नहीं करेगा, यहीं से कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। देखते हैं कंडीशंस में। तो यहां से एक वैल्यू हम लोग अभी लिख करके रखते हैं कि वी मैक्स जो है अंडर रूट आरजी था, व्हेन
भी लेस देन अंडर रूट आर जी। अगर इससे कम है, बड़ा होगा तो ये लूज कर जाएगा कॉन्टैक्ट को, हम लोगों ने देखा। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि यह पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे, इस सॉलिड स्फीयर के, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कुछ दूर तक आएगा और उसके बाद क्या होगा, यह कॉन्टैक्ट को लूज करेगा। तो जब ये आएगा यहां पर, सपोज कीजिए, तो इस पार्टिकल पे नॉर्मल अब इधर लगेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम तो बनेगा नहीं अब। तो ये सपोज कीजिए यहां से कितना एंगल बना लिया, थीटा। तो अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए कि यदि नॉर्मल यहां है तो इस पार्टिकल पे एक mg का फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहां से mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और यही mg cos थीटा यहाँ पे mg cos थीटा माइनस n जो है वो mg cos थीटा माइनस n यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसको प्रोवाइड करेगा, करेक्ट। और इस डायरेक्शन में यदि आप देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे कि mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, जो कि इसको नीचे की तरफ लाएगा। तो अब यहां से हम लोग वैल्यू, यहां पे क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट को यह लूज कर देगा। यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा कि mg cos थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा या माइनस n ले लीजिए आप, mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी अब v है, हमने v मान लिया, यहाँ पे u कितना ले लिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी अब 0, जस्ट जेंटल पुश किया गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v mv स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से n क्या है, n 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। mm यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर एन जी। और थीटा का वैल्यू निकालना है कि किस एंगल तक वो जाएगा, वो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको चलिए इक्वेशन 1 हम लोग करते हैं और बोर्ड को करते हैं ताकि दूसरा वैल्यू निकालें। तो अब यदि वेलोसिटी का वैल्यू आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू यदि मिल जाएगा तो आर जी कॉन्स्टेंट है, आप cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, करेक्ट। तो आप एक चीज देखिए कि क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से हाइट अगर निकाल लें कि कितना नीचे आया यह, तो यह आर है, रेडियस इसका आर दिया हुआ, यह थीटा है, तो यह पार्ट क्या हो जाएगा, आर cos थीटा। तो हाइट कितना नीचे आया, अगर इस पार्ट को हम h लिखूं तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r टोटल माइनस दिस हाइट माइनस r cos थीटा। तो दैट विल बी h इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, करेक्ट। तो यह इक्वेशन नंबर हमको 2 मिल गया। अब यदि इक्वेशन आप लिखेंगे इस पार्टिकल को, तो v का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो v का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। नीचे की तरफ यह पार्टिकल आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को लिख सकते हैं। h हम लोगों को मालूम है यहां से, तो u का वैल्यू कितना है, 0। u का वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि इसको जेंटल पुश, 0 वेलोसिटी से पुश कर दिया, जस्ट 0 दिया, जस्ट जेंटली पुश किया। u का वैल्यू 0 है तो कहां तक आएगा, वो एंगल हम लोग निकालना चाहते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू h। और h का वैल्यू आपको r के टर्म में मालूम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट डू वी गेट, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, h का वैल्यू r इंटू 1 माइनस cos theta. So now from equation 1 what we can write,
from equation 1 cos theta equals to v square, value of v square is 2gr 1 minus cos theta upon rg और gr, तो gr यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा वैल्यू? यहां से आप देखेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा, ये इस तरफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2, दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 2/3, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। ये थीटा का वैल्यू आएगा। और यदि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आसपास आएगा 48.2 डिग्री के। तो इस तरीके से अगर आप जीरो वेलोसिटी इसको दिए हैं, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यदि जीरो वेलोसिटी दिए तो यह 48.2 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल बना करके इसके कांटेक्ट को क्या करेगा? लूज कर देगा। और यदि यहाँ पे u से ज्यादा वेलोसिटी दिए और अंडर रूट आर जी से कम दिए तो आप जब लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो u का वैल्यू वहां पे रखना पड़ेगा एच के टर्म में और आपको आंसर वहां से आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो एक्चुअली इस तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में एक इक्वेशन तो हो जाएगा mg माइनस एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। उस इक्वेशन को लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh को। इक्वेशन को उस इक्वेशन को यूज करके v का वैल्यू निकालेंगे और उस v का वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, इस इक्वेशन से हमको वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के लिए थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कि वर्टिकल के साथ एक्चुअली वह कितना एंगल बना रहा था। तो एक्चुअली क्या कंडीशन होगा जिस कंडीशन के लिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पार्टिकल के लिए कंडीशंस क्या हो सकते हैं। अगर एक सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे तो वहां पे नॉर्मल और टेंशन दो केसेस होंगे, या तो टेंशन और वेलोसिटी दो केसेस होंगे, या तो टेंशन जीरो हो जाएगा या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गया पहले तो वह पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेगा, उसकी वैल्यू जो है वो 0 से √2gr के बीच में आएगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि √2gr से ज्यादा है तो वो पार्टिकल जो है उसका टेंशन जीरो होगा किसी न किसी सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्कल में जाकर के, और वहां से वो धागा स्लैग करेगा, टेंशन जीरो होगा और वो सर्कल को छोड़ देगा। और तीसरा एक स्फीयर का केस है, जबकि रिजिड बॉडी है कोई, उस पर कोई पार्टिकल को रखा हुआ है और वह पार्टिकल उसके सर्कुलर पाथ को फॉलो करना चाहता है, तो उसके लिए वेलोसिटी जो है वो √rg से कम होना पड़ेगा ऑलवेज। अगर √rg या उससे ज्यादा है तो वो पार्टिकल उसी समय टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही उस कांटेक्ट को लूज कर देगा और सर्कुलर पाथ पे नहीं होकर के पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा, जहां से वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। लेकिन यदि उससे कम हम वैल्यू दे रहे हैं वेलोसिटी, तो कुछ इस तरीके से आएगा जहां पे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे कि mg cos थीटा, यहाँ mg cos थीटा माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो n को आपको जीरो बनाना पड़ेगा, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और h का वैल्यू आप इक्वेशन से निकालेंगे, ये हाइट निकाल करके वहां पे पुट करेंगे, तो फिर उस इक्वेशन से आपको थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कि वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे जाकर के यह पार्टिकल अपने कॉन्टैक्ट को लूज कर देगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thanks. Go and study hard.